Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is molecular mass and formula mass. ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है. इससे रिलेटेड ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर मास. इसके नाम से पता चल रहा है द मैस ऑफ अ मॉलिक्यूल. The sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule is called molecular mass of that molecular substance. एक molecular substance है जिसमें molecules हैं. उस molecule के अंदर जितने atoms हैं उन सब का atomic mass जब आप प्लस करेंगे, add up करेंगे, तो जो आंसर होगा that would be molecular mass. molecular mass को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको atomic mass पता हो. जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था व्हेन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट मैस नंबर्स एंड एटॉमिक नंबर्स कि आपको जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं उनके प्रोटॉन नंबर भी याद होने चाहिए और उनके मैस नंबर्स भी याद होने चाहिए. एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली. पीरियोडिक टेबल से अगर आप आधा पौना घंटा लगाएं तो आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं. और जब आप बार बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे बाय कैलकुलेटिंग द मैसेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स तो आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा. वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा. सो लेट्स कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. इफ वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन इज अ diatomic molecule, a molecule which contains only two atoms. This is called diatomic molecule. Chlorine exists in the form of diatomic molecule. One chlorine, in the previous lessons we had discussed that chlorine's atomic mass is 35.5. If we want to calculate the atomic mass, molecular mass of chlorine molecule, one chlorine atom का atomic mass है 35.5 atomic mass units. For one chlorine. Here we have two atoms, so 35.5 multiplied by 2, it would be 71 AMU, that is atomic mass unit. If you want to convert this atomic mass unit of chlorine into grams, then you have to multiply it with 1 AMU. We had studied about it. It is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. So if you want to convert this value into grams, then 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. So 71 AMU is equal to 71 multiplied by 1.66 into 10 raised to power minus 24. और इसको मल्टीप्लाई करने से जो आपका आंसर आएगा that would be in grams. जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे. Hopefully is it clear? It's clear. Then if we have a molecule, for example sulfuric acid, this is H2SO4. We know that atomic mass of hydrogen is 1 AMU. Atomic mass of sulfur is 32 AMU. Atomic mass of oxygen is 16 AMU. Now we have to calculate the molecular mass of sulfuric acid depending upon the number of atoms present in the molecule. Molecular mass इसको हम MR से भी डिनोट कर सकते हैं. Molecular mass या इसको relative molecular mass भी कह सकते हैं. जैसे हमने relative atomic mass पढ़ा था तो जब हम कहेंगे कि the sum of relative atomic masses of all the atoms present in a molecule is called relative molecular mass. तो इसको हम लिखेंगे हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सल्फर एक ही है 32 प्लस here we have 4 ऑक्सीजन एटम्स. एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16 AMU. सो 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 it would be 2 plus 32 plus 16 4 are 64. So it would be 98. साथ हम लिखेंगे
AMU. The relative atomic mass, the sum of relative atomic masses of all the atoms present in a molecule is called relative molecular mass of that molecule. So sulfuric acid's relative molecular mass is 98 atomic mass units. Chlorine's atomic mass unit is molecular mass of chlorine is 71 atomic mass units, and if we want to convert it into grams, then we have the relationship between AMU and grams, so we can convert it very easily. इसके अलावा भी आप बहुत सारी और एग्जांपल्स ले सकते हैं और उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रिक एसिड HNO3. Here we have hydrogen's atomic mass is 1, so 1 plus नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14. एक ही नाइट्रोजन है तो 14 लिखा. एक ऑक्सीजन का है 16. Here we have 3 oxygen atoms. 16 multiplied by 3. 1 plus 14 plus 16 3s are 48. So it would be 63. साथ हम लिखेंगे AMU. This is atomic mass unit. ये तो हो गया मॉलिक्यूलर मैस. मॉलिक्यूलर मैस हमेशा होता है मॉलिक्यूल्स का. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला मैस. The ionic compounds are represented by formula units. जब इंशाल्लाह हम बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कोवेलेंट कंपाउंड्स दे ऑलवेज फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयनिक कंपाउंड्स और ऑलवेज हैविंग आयनिक फॉर्मूला यूनिट्स. हम किसी कोवेलेंट कंपाउंड के एक जो यूनिट उसमें बनता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, लेकिन अगर एक आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर जो यूनिट सेल है उसको उसका जो फार्मूला होगा उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते. और जो फार्मूला यूनिट है बेसिकली इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. तो उसमें हमेशा मोस्टली सिंपलेस्ट रेशियो ली जाती है क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आर एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल्स में चूंकि बेशुमार नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हमारे लिए उसमें मुश्किल होता है कि हम उसमें काउंट करके और उसको इतनी बड़ी तादाद में हम पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस को लिखें और फिर उसका फार्मूला डिराइव करें. जनरली हम आयनिक कंपाउंड्स के जितने जो फार्मूलाज होते हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, उनकी सिंपलेस्ट रेशियो लिख लेते हैं. इतने पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, इतने नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड की अगर हम एग्जांपल लें, इट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. इसमें एवरी सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस एंड एवरी क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस. तो अब 6 Na प्लस एंड 6 क्लोराइड आयंस, तो हम ऐसे नहीं करते कि ऐसे लिख लें, क्योंकि प्लस माइनस वन चार्जेस कैंसिल आउट हो जाएंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था. तो इसको हम हर एक के साथ 6 लगाने के बजाय हम इनकी सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं. दैट वुड बी कैंसल्ड आउट एंड सिंपली वी वुड हैव द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl. दिस इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट एंड आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर आयनिक फार्मूलाज, दैट इज फार्मूला यूनिट एंड दिस इज NaCl. अगर हम इसका मास मेजर करना चाहें तो दैट वुड नॉट बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वो मॉलिक्यूल है नहीं तो उसका मास भी मॉलिक्यूलर मास नहीं कहलाएगा. ये एक फार्मूला यूनिट है तो इसका मास को हम कहते हैं फार्मूला मास. डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ यूजिंग द वर्ड्स. जो मॉलिक्यूल होगा उसके लिए हम कहेंगे ये मॉलिक्यूलर मास है, और जो फार्मूला यूनिट होगा, जो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे फार्मूला मास. If you want to calculate the formula mass of sodium chloride, it would be 1 sodium atom. Its mass, relative atomic mass is 23 atomic mass units, plus chlorine is 35.5. So total is 58.5 atomic mass units. This is the formula mass of sodium chloride.
Same is the case with magnesium chloride. This is an ionic compound. If we want to calculate its formula mass, magnesium का जो atomic mass है that is 24, 12 इसका प्रोटॉन नंबर है और 24 इसका atomic mass है, प्लस क्लोरीन 2 एटम्स हैं हमारे पास, 35.5 एक एटम का मास है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, so 24 plus 71 and it would be 95 atomic mass units. This is the formula mass of magnesium chloride. इसी तरह से आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का, कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, there's a number of फार्मूला यूनिट्स और मॉलिक्यूल्स हैं जिनके आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज कैलकुलेट कर सकते हैं और फार्मूला मैसेज कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट्स जस्ट द गेम ऑफ प्रैक्टिस. यू हैव टू डू द प्रैक्टिस अलॉट. अगर आप चाहते हैं कि आपको केमिस्ट्री पे ग्रिप हो तो आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए और इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो होपफुली यू गॉट इट. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती. टिल देन अल्लाह हाफिज़.